تشریف رکھیے۔ شہربانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ شہربانی کی ترتیب کی کتاب۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس اور قادر، اے قدوس اور غیر فانی، ہم پر ہے۔ سونا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئیں ہم کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے۔ ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن آراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی اور خداوند یسوع مسیح کی دعوت سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ قادر مطلق خدا، ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب سب سے جو اپنے بھائیوں، بہنوں، بچوں، دوستوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم اور مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 257 257،
دل لے لے میرا پیارے یسوع، اس کو تو نے بنایا ہے۔ کریں آج کی صبح کے لیے۔ آج کا دن ایک خاص دن ہے۔ کرسمس کے بعد نئے سال کا جب آغاز ہوا تو اب ہم
इस साल में जितनी ईदें आएंगी उनका तज़किरा आज कलाम मुक़द्दस के ज़रिए होगा। सो मेरी आपसे दरख्वास्त है, हर एक दिन के लिए, ज़िंदगी के हर लम्हा के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी किया कीजिए। कोई भी दुआ कर सकता है ख़वातीन में से, शुक्रगुज़ारी करनी है कि खुदा ने फिर हमारी ज़िंदगी में ईद ज़हूर, क्या नाम है जी, मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम इसके बारे में खुदा के कलाम को सुन सकें। आए हम दुआ मांगें। कोई भी दुआ कर सकता है ख़वातीन में से। तो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरी वफ़ादारी पुश्तैनी वफ़ादार खुदा जो को प्यार करता है। हम घटे तू बड़े, तेरा पे जदोजहद दिया जाए। इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। जितने बहन भाई तेरी हैकल में एक एक रूह को छुड़ा, एक एक को बरकत देती, तो खानदानों को इस्लाम की रहम मांग देती हूँ। गुज़रे सालों में तूने मेरी मदद और रहनुमाई की, तूने मैं संभाले रखा, बेश बहाने देता कि एक एक नेमत का शुक्रिया अदा करती हूँ। आस्था करें। सब कुछ करने कुदरत रखता है, तो जलाल का बादशाह है, हमारे सोचो ख्यालों से बढ़कर काम करता और है। आस्था। साथ बात का तेरी बरकत चाहती हूँ, इनके हाथों को मसा कर, जितनी जाने तेरे आगे अंदर झुकी हुई एक एक जान के लिए खुदा तेरे ब्लेसिंग मांगती हूँ। आए खुदा में मैंने गुजरे सालों में जो गलतियाँ खता होंगी तो माफ कर देना। आने वाला साल पाए से बरकत और मुबारक हो। आए खुदा रमज़दा खानदानों के लिए तसल्ली और तमन्ना चाहती हूँ। तसल्ली का चश्मा तू ही है। आए खुदा सेहत और तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। तू यहोवा यही है, सब कुछ मुहैया करता है, तू मौजूदात का खुदा है। और खुदा अगर मैंने ज्यादा मांगा माफ कर, मांगना भूल गई याद दिला, तेरे प्यारे पुत्र मांगती, आमीन। ज़बूर नंबर 126 गाएंगे। कैदी सैनी यहोवा ने लियांदे जद छुड़ा, तद साडा हाल सी जिवें सुफना कोई वेखदा।
اس زبور کے ایک ایک لفظ کو کبھی آپ غور سے دیکھیں. کچھ بچے یہاں بیٹھے ہیں جنہیں ان الفاظوں کا نہیں پتہ. آخری آیت اگر ہم دیکھ لیں کہ بیج دا چک کے ذخیرہ روندا ہویا جاندہ ہے. اب یہ جو بچے ہیں اس دور کے شاید اس کو نہ سمجھ سکیں. جب کاشتکار موسم کو دیکھتا ہے پھر وہ بیج بوتا ہے, اٹھا کے لے کے جاتا ہے, خواہ گرمی ہو کیسا بھی موسم کیوں نہ ہو, مشکل میں سے گزر کے بیج بوتا ہے. اور جب وہ فصل تیار ہو جاتی ہے تو جب وہ پھر وہ پیداوار, وہ گندم, وہ چاول جیسی بھی فصل ہے وہ پھر گھر میں خوشی کے ساتھ لاتا ہے. تو جب آپ مشکل میں سے گزرتے ہیں, پریشانی میں سے گزرتے ہیں, پھر خوشی پاتے ہیں تو اس خوشی کی آپ کی زندگی میں اور طرح کی تاثیر ہوتی ہے. تو اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ بیج دا چک کے ذخیرہ روندا ہویا جاندہ ہے مشکل تکلیف میں, پر خوشی دے نال بے شک بھریاں پھر خوش ہوتا ہے. تو آپ گزرے سال کو دیکھ لیں, اس سال کو دیکھ لیں, آپ خداوند کی شکر گزاری کریں. مشکلات تو تھیں پچھلے سال. ایک دفعہ میں نے 2019 گزر رہا تھا تو 20 کہا, تو میں نے کہا بھی 19 اور 20 میں فرق کوئی نہیں ہوگا. ایک ہند سے کہا 19 اور کہتے ہیں نا وہ 19-20 کا فرق ہے خیر. تو میری اور آپ کی جو روشیں ہیں پھر دوبارہ مڑ کے وہاں پہ نہ جائیں, کیونکہ میرا اور آپ کا خدا مجھ پہ رحم کرتا ہے, کرتا ہے, اور نہ دیتے بڑیاں مہربانیاں. آپ پہ مجھ پہ خدا نے بڑی مہربانی کیا گزرے سال. خطائیں بڑی کی ہیں ہم نے, خدا نے پھر بھی معاف کیا. کرتا ہے اور نہ دیتے بڑیاں مہربانیاں. مہربان ساڈا یہوہ خوش اسیں اس تو, کیونکہ وہ ہم پہ مہربان ہے اس لیے ہم خوش ہیں. تو کیوں نہ پھر آج کے دن کے لیے شکر گزاری کریں.
क्रिसमस के दिन जो है 6 जनवरी तक रहते हैं। 6 जनवरी ईद ज़हूर है। खुदावंद यीशु मसीह का गैर कौमों पे भी ज़ाहिर होना कि मैंने आपके लिए भी निजात का बंदोबस्त किया है। आपका भी अपने हाथ हक है जितना किसी दूसरे का है। हम भी गैर कौम थे भाई, मैं और आप गैर कौम थे, हमारा तो अपना कोई वजूद ही नहीं था। तो इसलिए खुदा की जितनी भी शुक्रगुजारी करें इस साल के लिए, खुदावंद का शुक्र करें। इसलिए कि अभी कल मैंने एक जनाजा पढ़ा है। मिसेस मार्था इमैनुअल दिलकुशा में घर था, चर्च की बड़ी बाकायदा रुकन थी, चर्च को सपोर्ट करने वाली थी। सबसे बड़ी बात सुन लें ज़रा, जो लोग खुदा के घर को सपोर्ट करते हैं खुदा उन्हें लंबी भी ज़िंदगी देता है। 81 ईयर्स, कितने 81 साल, बड़ी इज्जत पाई उन्होंने हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में। कमज़ोर हो गई थी फिर भी वो हॉस्पिटल वाले कहते थे आके बस दफ्तर में बैठ जाया करें, हमें ज़रूरत है आपकी। यहाँ भी कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ बाहर चले गए हैं, कई ऐसे जिनको वहाँ पे मैं भेजता था और कहता था जाके मैडम मार्था इमैनुअल से मिलें, वो वहाँ जॉब लगवा देती थी, नौकरी मिल जाती थी। तो हमें ऐसे लोगों के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इससे 4 दिन पहले मिसेस मुनव्वर चांद, वैसे वो मिस चांद ही लोग उनको कहते थे, नाम परवीन था उनका, 52 ईयर्स 52 साल लूसी हैरिसन स्कूल की हॉस्टल इंचार्ज भी रही हैं काफ़ी देर, और फिर वहाँ फ़िज़िकल टीचर भी थी। कई लोग यहाँ बैठे होंगे ख़वातीन जो वहाँ से लूसी हैरिसन से पढ़ी हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, चूँकि उनका घर अब जब रिटायर हुई हैं बड़ी दूर चली गई थी, अजमेर टाउन बहरिया के करीब, तो कोई जाता नहीं था उनकी तरफ। खुदा का शुक्र करें, मैं और शकीला हम दोनों जब वो हमें फ़ोन करती थी हम उनकी तरफ जाते थे। तो अपनी ज़िंदगी में वो कह गई थी मेरा जनाजा पादी साहब आपने पढ़ना है। उस दिन मौसम भी ठीक नहीं था, नए साल वाले दिन जनाजा उनका पड़ा है। वहाँ जाके फिर वहाँ से गोरा कब्रिस्तान हम लाए। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने खिदमत की होती है ना, खुदा का कलाम कहता है कि जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी, बोला करें, जो मेरी खिदमत करता है, तो मैं और आप ना भी करें ना तो उस शख्सियत को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनके ख़िलाफ़ सख्त बातें भी करते जाएं, उनकी शख्सियत को फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि खुदा उन पर राज़ी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ खुदा आप सब पे मेहरबान है। 2026 का साल कई लोगों ने नहीं देखा। एक खुदा का खादिम था भाई अयूब, यहाँ बैठे होंगे, उनका ख़ानदान, उनका दामाद था आयशा, हमारी क्वायर की बड़ी रेगुलर थी, उसका हस्बैंड हादसे में खुदा मिस हो गया। खा पीछे कोठड़ी में जाके आस्था से दुआ करें, वो मेरी और आपकी दुआओं को सुनता है। इसलिए आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए शुक्रगुजारी का दिन है। बनवीद पादरी नवीद आप दुआ में रहनुमाई करें, चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी करें गुज़रे साल के लिए और आने वाले वक्त के लिए। दुआ मांगें। खुदा, माबूदों में तुझसा कोई नहीं, तेरी सनतें बेमिसाल हैं, तेरी मानिंद कोई खुदा नहीं। तो आसमान को साहिबान की तरह तानता, नूर को पोशाक की तरह पहनता है। तू जो आसमानों के आसमान में भी समा नहीं सकता। हम तेरे पाक हुजूर में हाजिर हैं। बेशक तू बुलंदों वाला है, लेकिन तू पाकसार का ख्याल रखता है। ए खुदा, हम तेरे मुबारक बेटे अपने मुनज्जिम खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में तेरे पाक हुजूर में हाजिर हैं। तो हम सबको कबूल फरमा। हमारी शुक्रगुजारियाँ, हमारी इल्तिजाएं तेरे पाक हुजूर में मकबूल ठहरे, चूँकि हम यीशु के नाम में उन्हें तेरे पास लाए हैं। हम तेरे शुक्रगुजार हैं प्यारे यीशु कि तू हमारी खातिर आसमानों को छोड़कर ज़मीन पर उतर आया। तूने हमारी खातिर ज़िल्लत और पस्ती को बर्दाश्त किया ताकि हमें अपने साथ आसमानी मुकामों पर बिठाए।
हम इस निजात के लिए जो हमें हासिल है, हम तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इस ईमान के लिए जो हमें बख्शा गया कि यीशु ही खुदावंद है। ऐ खुदा बाप, हम तेरे पाक हुजूर में शुक्रगुजारी पेश करते हैं, हम तेरे पाक हुजूर में शुक्रगुजारी पेश करते हैं ऐसी खिदमत गुजार लोगों के लिए जिन्हें तू कलीसिया में रखता और उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि तेरी कलीसिया, तेरा खानदान तरक्की करे। इन सभी जिंदगियों के लिए जो गुज़िश्ता साल में तेरे पास पहुंच गए, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। उन अच्छी मिसालों के लिए जो उन्होंने कायम की, ऐ खुदा, उनके खानदानों के लिए तसल्ली और इत्मीनान की दुआ करते हैं। इस नए साल के लिए तुझसे मदद, कुव्वत और रूह कुद्स का मसा चाहते हैं। हम सबको आसमानी हिकमत से मामूर कर, ताकि इस नए साल में हमारी जिंदगियों से फ़कत यीशु नाम जलाल पाए और हम इस दुनिया में अमन और सलामती को कायम रखने के लिए हमेशा अपना हिस्सा अदा करते रहें। आज के कलाम के लिए हम सबको तैयार कर यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। यशायाह नबी का सहीफ़ा 60वां बाब पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। गैलरी में जितने लोग बैठे हैं, आप में से कोई पढ़ना चाहता है? हवाला देना चाहता हूँ, वरना मेरे पास तो बड़े खादम यहाँ बैठे हैं, सबको दे दूंगा मैं। यशायाह नबी का सहीफ़ा 60वां बाब पहली आयत से 6ठी आयत। इस रो से जो नहीं पढ़ता ना, वो हाथ खड़ा करे। अगर आपने 2-3 दफ़ा पढ़ लिया पिछले, फिर मैं मौका नहीं दूंगा। पदरी कलीम, आप ये वाला पढ़ें। सफ़ा नंबर 708। यशायाह नबी का सहीफ़ा 60वां बाब पहली आयत से 6ठी आयत। आज का दूसरा विर्द सफ़ा नंबर 185 185। एफसियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, तीसरा बाब पहली आयत से 8वीं आयत तक। एफसियों तीसरा बाब पहली आयत से 8वीं आयत। इस रो में को पढ़ना चाहता है? क्वायर में को पढ़ना चाहता है जो नहीं पढ़ता? चले आप पढ़ लें। मैं बस डॉक्टर सेल को देना चाहता था, ये कभी नहीं पढ़ते। ऐनक नहीं है। मैं आपको कहता हूँ, जिसकी ऐनक नहीं ना होती आपके पास, आप मुझसे आके लिया करें। ये जो मेरी ऐनक है ना, ये ओ पॉजिटिव है, ये सबको लग जाती है। ठीक है, चले आप गिल साहब आप पढ़ें। आज इनको माफ़ कर देते हैं। फिर हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 451 451। जलाल 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 तेरा है जलाल। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, पहला बाब 10वीं आयत से 18वीं आयत। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, पहला बाब 10वीं आयत से 18वीं आयत। शजीला बेंजामिन, आप ये हवाला लें और उसी तरह आपने, जब हम कहेंगे आके ये हवाला आपने हमारे लिए तिलावत करनी है। सफ़ा नंबर 81। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, पहला बाब 10वीं आयत से 8वीं आयत। ये तीनों हवाले मेरी और आपकी नसीहत के लिए हैं। जब आप गौर से इनको सुने, पढ़ें, देखें, आज के दिन के तलक से आपको खुद ही मैसेज मिलेगा। ज़्यादा इश्तिहारात नहीं हैं। अगले माह शादी है, लेकिन अगले इतवार से शुरू करेंगे शादी की पुकार। हम इस साल के उन दिनों को याद करते हैं
1 जनवरी चूँकि नए साल का दिन था, पर पूरी दुनिया में वो यौम अमन हम मनाते हैं कि दुनिया में अमन हो, सुलह हो, सलामती हो। 2 तारीख को बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के ताल्लुक़ से क्रिसमस और नए साल की इकट्ठी खुशियाँ मनाने के लिए हमने डायसिस ऑफ रायवन, बिशप ऑफ रायवन ने ये प्रोग्राम किया। जितने लोग आए हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और अब इस माह में जो ख़ास दिन होंगे 18 तारीख से लेकर 25 जनवरी तक इत्तेहाद का हफ्ता होगा। किसका? यूनिटी। घरों में भी नहीं है यूनिटी। बड़े शौक़ से रिश्ता देखते हैं, ढूंढते हैं, बड़ी खुशी के साथ बहू को ले आते हैं। 4 दिन नहीं गुजरते, वो इतनी अच्छी जो होती है बेचारी फिर नज़रों से गिर जाती है। पता नहीं क्या बात है। इस साल में अहद कर लें कि अगर जब ले के आते हैं उसको तो फिर उसको बेटी बना के रखें। और बहू से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो भी बेटी बन के रहे। इन रिश्तों को ज़रा हमने जंग आलूदा कर दिया ना, जंग लगा दिया हमने। तो आए ज़रा इस साल इस जंग को थोड़ा साफ़ करने की कोशिश करें। जंग को उतारने के लिए पहले तो रेगमार इस्तेमाल होता था, थोड़ा ज़ोर भी लगता था ना, तो ज़ोर लगाए, अपना आप मार दे, खैर है। मैं मर जाएगी ना तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वैसे है कुछ नहीं, यीशु मसीह का जो नाम है ना क्रिश्चियन है ना, क्राइस्ट से बना ना, तो एंड वाले जो अल्फाज है ना क्रिश्चियन के, कुछ स्पेलिंग बता सकता है? IAN, आई एम नथिंग। वो है मसीही कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है मेरे साथ जो लगा क्राइस्ट है ना वो है। तो मैं और आप हैं कुछ नहीं है। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि इस साल में इत्तेहाद का हफ्ता भी हम मनाएंगे। आपके चर्च में भी आएंगे और आपके चर्च में दूसरे लोग आके कलाम सुनाएंगे, मैं बैठूंगा। हमें अच्छा लगता है क्योंकि जब वो मुझे अपने चर्चेज़ में, रोमन कैथोलिक चर्च में, साल्वेशन आर्मी में, प्रेस्बिटेरियन चर्च में कहते हैं कि आप वहाँ पे कलाम सुनाएं, तो फिर मैं कहता हूँ मेरे चर्च में आप सुनाएं आके। तो इसलिए इत्तेहाद के हफ्ते में हमें पहले खुद तो इत्तेहाद करें घर में इत्तेहाद नहीं होगा तो महल्ले में भी नहीं होगा, महल्ले में नहीं होगा, चर्च में भी नहीं होगा, चर्च में नहीं होगा तो डायसिस में नहीं होगा, डायसिस में नहीं होगा तो यूनियन जहाँ भी है, चर्च पाकिस्तान में भी नहीं होगा। घर से शुरू करें। इसलिए आने वाले दिनों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए करता हूँ कि गुज़रे दिनों में हमने ग्लोबल फैमिली का दिन मनाया है कि पूरी दुनिया अब सुकड़ के एक छोटा सा गांव बन गई है। यहाँ पे हादसा हो ना तल्ले में, हमें नहीं पता चलता। जो हमारे अजीज़ अमेरिका, इंग्लैंड बैठे हुए ना, वो हमें बताते हैं कि तल्ले में ये वाक़या हो गया। इतनी छोटी दुनिया हो गई है, गांव बन गया। तो हम ग्लोबल फैमिली हैं, पूरी दुनिया मसीही लोग। सो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग अपने लिए भी घर में इत्तेहाद की रूह को पैदा करें। यही नया साल है। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं। एक मिनट ज़रा मिसेस रफ़ीक आप आ जाएं, आपने कोई छोटी सी गवाही देनी है, जल्दी से आ जाएं, फिर हम कलाम सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर ज़ाहिर हुआ। क्योंकि देख तारीकी ज़मीन पर छा जाएगी और तीर की उंगलियों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तलू की तजल्ली में चलेंगे। अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं
तेरे बेटे दूर से आएंगे और तेरी बेटियों को गोद में उठा कर लाएंगे, तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी। हाँ, तेरा दिल उछलेगा और कुशादा होगा, क्योंकि इस मंदिर की फरमानी तेरी तरफ फेरेगी और कौमों की दौलत तेरे पास फराहम होगी। ऊँटों की कितारें और नदियान और ईफा की साड़ियाँ आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी। वो सब सबा से आएंगे और सोना और रुबान लाएंगे और खुदा की हम का ऐलान करेंगे। कलाम हक के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। आमीन आमीन। आज का दूसरा मैं पौलुस तुम गैर कौम वालों की खातिर मसीह यीशु का कैदी हूँ। शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतज़ाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ। चुनांचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ, जो और ज़मानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, जिस तरह उसके मुक़द्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब ज़ाहिर हो गया है, यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मीरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं, और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादिम बना। मुझ पर जो सब मुक़द्दसों में छोटे से छोटा हूँ, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकयास दौलत की खुशखबरी दूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।
वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक़ बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि ये वही है जिसका मैंने ज़िक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फ़ज़ल पर फ़ज़ल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फ़ज़ल और सच्चाई यसु मसीह की मार्फत पहुँची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया और रुल कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतुस पिलातूस कैद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बाबू जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना हो गई। और मैं ईमान रखता हूँ रुल कुदस पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़ुबानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। हम दुआ मांगें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम तुझसे अपनी दरख्वास्तें, मन्नतें, शुक्रगुजारियाँ, मनाजातें तेरे हुजूर गुजरान सकें। गुज़रे वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो लोग हमसे जुदा हुए, बिछड़ गए, हम उनकी ज़िंदगियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियां तेरे खौफ में रहकर बसर की। जो कमज़ोरी की हालत में हैं, सबको नाम बनाम याद करते हैं। उन पर रहम कर, क्योंकि तू रहीम व करीम खुदा है। जो लोग गलत किस्म की सोसाइटी में हैं, गलत इल्लत पड़ गई है उन्हें, हम उनको भी तेरे हुजूर रखते और दुआ करते हैं उनकी उन बुरी आदतों को तू ही ख़त्म कर सकता है, और वो इरादा करें तो तर्क कर सकते हैं, ताकि वो तारीकी को छोड़कर रोशनी में आ जाएं। इस वक्त हम तेरा कलाम सुनने के हैं। तेरा पाक रूह हम सब की रहनुमाई करे, ताकि कलाम की बातें हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। अपने खादम के मुंह में भी अपना कलाम दे, ताकि जो अल्फाज तेरे लोगों तक पहुँचें बेतासीर वापस ना आए। अल्फाजों की तासीर तू ही दे। अपने लोगों को समझने के लिए अक्ल, दानिश और फहम दे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होने की हैसियत से मैं आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ और आप सबको वेलकम करता हूँ कि आज सुबह आप खुदा के घर में आए, ताकि आप खुदा की शुक्रगुजारी
बाजमात मिलकर कर सके। आपके ख़ानदानों के लिए, आपकी शख्सी ज़िंदगियों के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये सारी खिदमात जो मैं और आप मिलकर करते हैं, ये खुदावंद के लिए करते हैं, दिखावे के लिए नहीं करते, किसी पे एहसान नहीं करते। अगर आप उसकी खिदमत करते हैं तो वो आपको सरफराजी भी देता है और इज़्ज़त भी देता है। कोई भी खिदमत आप जिस चर्च में हम सब मिलकर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं, कई खिदमत ऐसी है जो नज़र आ रही होती है, कुछ ऐसी खिदमत होती है जो हमें नज़र नहीं आती। जब आप अलसब आते हैं तब बाहर रोड देखा करें, साफ़ सुथरा होता है, वहाँ भी हमारे ही अपने लोग यहाँ बैठे हैं। जब आप चर्च के अंदर आते हैं फिर भी अपने लोग हैं, इस तरफ देखते हैं अपने बच्चे हैं, संडे स्कूल की तरफ देखते हैं, जहाँ भी। सो ये सारे हाथ मिलकर जो काम करते हैं, उन हाथों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। आज जितने लोग, जो नए लोग हमारे साथ इबादत कर रहे हैं, चंद एक ऐसे चेहरे हैं जिन्हें देर के बाद मैं देख रहा हूँ, हम उन्हें वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। उनका आना हम सब के लिए और इस सेंट जॉन चर्च की फैमिली के लिए, ख़ानदान के लिए बरकत का सबब ठहरे। जो बच्चे हंगरी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी के लिए, हम उनके लिए भी दुआ करें, क्योंकि सैकड़ों बच्चे अप्लाई करते हैं लेकिन चंद एक वहाँ पे कामयाब होते हैं। तो इसलिए दुआ करते हैं कि इस साल जो बच्चे अप्लाई करते हैं, खुदा अपनी पाक मर्ज़ी के वसीले से उन्हें कामयाबियों से हमकिनार करें। मुस्तकबिल के लिए खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, जो आज का पहला विर्द है। अगर आपके पास बाइबल है, आपने पहले खोली है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो खोल के देख लें। जो बातें इस वक्त होंगी वो मुस्तकबिल की शान शौकत के लिए होंगी। आपको खुदा जो शान शौकत देता ना, उसके लिए भी खुदा का शुक्र अदा किया करें। यरूशलेम को जो शान शौकत खुदा ने दी, उसके लिए भी वहाँ के लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ बातें, कुछ पेशरी हुई हैं, पूरी हो गई हुई हैं, और कुछ हो रही हैं और कुछ होंगी। इसलिए ये हवाला आज के दिन के लिए मखसूस है। 6 तारीख को ईद ज़हूर हम बनाते हैं, चूँकि आज इतवार का दिन है, इसलिए ये हवाला, ये तरतीब जो हमारी डिक्शनरी के मुताबिक है, यशायाह नबी का सीफ़ा 60वां बाब पहली 6 आयात हैं। उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया है। हमने यीशु मसीह की पैदाइश के दिन मनाया है। तारीकी ख़त्म और नूर आ गया। उठ मुनव्वर हो और खुदावंद का जलाल तुझ पर ज़ाहिर हुआ। देखें, ऐसी जगह जिसका ज़िक्र है, जहाँ से मैं अक्सर कहता हूँ रोशनियों, नेकियों, तवानाइयों और मोहब्बतों के सारे शहर, सारे चश्मे, मोहब्बत का भी एक चश्मा है ना, रोशनी का भी एक चश्मा है, और इसलिए कह रहा हूँ रोशनियों, तवानाइयों, नेकियों और मोहब्बतों के सारे चश्मे इसी शहर की मिट्टी से फूटते हैं जिसे हम यरूशलेम कहते हैं। अमन और ख़ास तौर पर रोशनियों का शहर, जहाँ से खुदा ने अपने लोगों को उठाया और उन्हें खिदमत दी कि वो खुशखबरी दें, क्योंकि देख तारीकी ज़मीन पर छा जाएगी और तेरे की उम्मतों पर, लेकिन तारीकी तो होगी, घुप अंधेरा होगा, लेकिन खुदाबंद तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नमाया होगा। यानी कि खुदाबंद की जो तसल्ली, तजल्ली, खुदाबंद की जो तजल्ली है वो हम सब पर तलू होगी। ताले का मतलब यह है, तलू, जैसे अर्ली मॉर्निंग, अगर जो लोग सुबह उठते हैं, घट ही उठते हैं, कभी आपने सूरज को निकलते देखा हो, तजल्ली, सूरज तलू होता है, अंधेरा ख़त्म हो जाता है और रोशनी आ जाती। काश मेरी रब की ज़िंदगी में ऐसा हो। इस साल में खुदाबंद की तजल्ली तुझ पर, आप सब पर
तलू हुई। आगे कहता है लेकिन खुदावन तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होंगे, इसलिए जो जलाल 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 गीते गाएं। मेरी कलीसिया, मेरे क्वायर को भी ये पसंद है गीत, मेरे घर वालों को पसंद है ये। जलाल का लफ्ज़ है ही ऐसा, अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। क्या होते हैं जी? इत्तेहाद, यूनिटी। ज़रूरत है मुझे और आपको यूनिटी की। घर में, मोहल्ले में, शहर में, सूबे में, हमारे मुल्क में, हमारी डायसिस में, हमारे चर्च पाकिस्तान में यूनिटी की ज़रूरत है। लीडर्स को इत्तेहाद और यूनिटी की ज़रूरत है। इकट्ठे हो गए, मुस्तकबिल में शान व शौकत ही मिलेगी। और सलातीन, तीसरी आयत, और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी। रोशनी चीज़ ऐसी है कि कौमें तेरी तरफ बढ़ेंगी, उसमें इतनी कशिश है। सलातीन तेरे तलूह की तजल्ली में चलेंगे। सलातीन क्या होता है? सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया, उन्होंने ऊँट मंगवा लिए 3 और सलातीन उसके ऊपर बैठे ताकि क्रिसमस डिनर वाला दिन अंदर आए। यहाँ तक तो पहुँच गए थे, सीढ़ियों तक। वो सलातीन थे, मजूसियों को सलातीन कहते हैं। वो बादशाह थे। कहता सलातीन तेरे तलू की तजल्ली में चलेंगे, अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, सबके सब इकट्ठे होते हैं, तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे भी दूर से आएंगे। ऐ बनी इसराइल, ऐ यरूशलेम, जो बिछड़े हुए हैं, कौमों की दौलत भी तेरे पास फराहम होगी। ये उम्मीद रखें इस साल में आप सेंट जॉन चर्च का मुस्तकबिल शान शौकत वाला हो। इस साल भी बड़ी शान शौकत से हमने मनाया है क्रिसमस के दिन, आप सब ने देख लिया, उसकी सबूत आपके पास मौजूद है। इसलिए कि आपके अंदर कुशादगी आई है, दिल क्या हो गया है। वरना तो इंतजामिया लगे नहीं पैसे बड़े खर्च हो जाते, नहीं वो पैसे घटने पाते सब है, काम नहीं कर रहे। इस दफ़ा उन्होंने करवा ही दिया सारा काम। कुशादा दिल रखें, खुदा मुहैया करता है, क्योंकि वो यहोवा यरी है। कौमों की दौलत तेरे पास फराहम होगी। और आज आप देख लें, छोटा सा मुल्क इसराइल, सारी दुनिया की दौलत इनके कंट्रोल में है। सारी दुनिया की दौलत इनके कंट्रोल में है। किसने की है? खुदा ने की है। इसराइल, यरूशलेम, मुस्तकबिल में शान शौकत होगी, कौमों की दौलत तेरे पास फराहम होगी। ऊँटों की कतारें, ऐसी थोड़ा ऊँट शूट मंगवाते हैं भाई हम। मध्यान और ऐफा की साड़ियाँ आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी। वो सब सबा से आएंगे। सबा क्या है? किसी का नाम है? रखते हैं नाम, लड़कियों के नाम रखते हैं सबा। सबा की मलका आ गई थी, आई सुलेमान के पास थी। इसलिए आई थी कि उसने सुना कि ऐसा शख्स, इतनी बड़ी सल्तनत के शख्स, बादशाह, कैसा इंसाफ करता है। वो मुश्किल काम है जिसके सुपुर्द किया गया, लेकिन खुदा ने फिर साबित कर दिया कि वो इंसाफ किस तरह से करता था। अक्ल, दानिश और फहम देखें। 2 ख़वातीन का मसला उनके पास आ गया, बच्चा एक और ख़वातीन 2, माएँ 2, बच्चा एक कहे मेरा, दूसरी कहे मेरा। अब बादशाह को खुदा ने हिकमत दी, उसने अपने 2 बंदों से कहा पकड़े ये बच्चा। उन्होंने ऐसे पकड़ा, टांगों से कहा कि तलवार के साथ इसके 2 टुकड़े कर दे। जिसका नहीं था ना, वो कहती ठीक है कर दे, लेकिन जिसका था उसने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, इसको दे दे, इसको दे दे। बच्चा मेरा जीता रहेगा तो मैं कहीं भी देखती रहूंगी, इसको दे दें। यह है ममता, यह है सच्चाई जिसकी आज इस दुनिया में ज़रूरत है। और वो सोच उस खातून की, उस माँ की सोच रब्बानी सोच थी, रब वाली सोच थी, खुदा वाली सोच थी। दे दें अच्छी चीज़, मेरा बेटा है ना, दे दें इसको। लेकिन दूसरी की सोच शैतानी थी, इंसानी थी। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सोच तब्दील कर लें इस साल में। ईद ज़ुहूर के मौका पर
अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में खुशहाली हो, शान शौकत हो घरों में, ख़ानदानों में, तो फिर सोच को बदलने की ज़रूरत है। आइए ज़रा 1-2 मिनट में जो हवाला इंजील मुक़द्दस का है, वहाँ पे सिर्फ एक लफ्ज़ को मैं ज़्यादा लूँगा, बाकी चीज़ें आपको आती हैं, समझते हैं हम इन बातों को, क्योंकि हम बार बार दोहराते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में कई सवाल किए जाते हैं ना। तो खुदा के कलाम में यूहन्ना कहता है वो दुनिया में था, पहले से ही था, दुनिया बनने से पहले ही था, दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई। लोग माने या ना माने, मैं और आप मानते हैं, मेरा और आपका ईमान है। क्यों जी, है आपका ईमान? मेरा तो बड़ा पक्का ईमान है कि यीशु मसीह पहले से था। ईमान क्या चीज़ है? एतमाद है, भरोसा है, यकीन है, एतबार है, लेकिन ईमान का ज़मीर के साथ बड़ा तल ईमान में नेक निजती बड़ी ज़रूरी है। ईमान में बगाड़ जब पैदा होता है ना, कई लोग हैं उनके ईमान में बड़ा बगाड़ पैदा हुआ है। आज भी कलीसियाओं में भी लोग बैठे हैं, घरों में भी बैठे हैं, मोहल्ले में भी बैठे हैं, इस मुल्क में भी बैठे हैं, उनकी सोच ठीक नहीं, बदनीयती पे मबनी है। जब ईमान में बदनीयती आ जाए, बेतकादी पैदा हो जाती है, तो फिर इंसान तखरीबकार बन जाता है। क्या बन जाता है? आज की तखरीबकारी इस वजह से है, ईमान में बिगाड़ है। तखरीबकारी सिर्फ ये नहीं जो बम ब्लास्ट करते हैं, वो ना समझे सिर्फ वही है तखरीबकार, हम भी बड़े तखरीबकार हैं। छोटी छोटी बातों में अपने फ़ायदे के लिए घर में भी तखरीबकारी होती है, मोहल्ले में भी होती है। 3 दिन पहले हमारे गेट पे एक शख्स आया था मसीही, फिर उसने लालच की वजह से अपना ईमान ही बदल लिया। फिर आया, उसने कहा जी यहाँ से फ़ोन गया है। मैंने कभी नहीं गया, शार्ट कर रहा हूँ बात। उसने लोग बुलाए, लोग आए। जब मैं बाहर निकला तो उन्होंने कहा, पादरी खोखर साहब ने आस्ता आस्ता उन्होंने कहा यार छोड़, वापस चले गए। क्या करना चाहता था वो? दिहाड़ी लगाना चाहता था, तखरीबकारी करना चाहता था, पैसे लेना चाहता था उन लोगों से जो चर्च के लोग थे। लेकिन मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया, उसको कंट्रोल किया, मोहब्बत से किया, प्यार से किया, अपने तल्लुकात से किया। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, तकरीबकारी हर जगह मौजूद है भाई। आपके मोहल्ले में मौजूद है, ख़ानदानों में मौजूद है। क्यों? एक घर का आदमी यहाँ आता है, बीवी पीछे जाती है, बच्चे दूसरे चर्च में जाते हैं, उनके घर में बिगाड़ है। घर के 5 लोग हैं, वो बटे हुए हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। इत्तेहाद नहीं है, यूनिटी नहीं है, मुत्तफिक नहीं है, ईमान में बिगाड़ पैदा हो गया बदनिजती की वजह से, जिसकी वजह से तकरीबकारी होती है। और फिर हम कहते हैं दुआवां भी बड़ियाँ, हम दूसरा भी बड़ी ज़रूरतां नहीं पूरियां होंदियां, कित्थे होनियां ने? जब नीयत में ईमान में बिगाड़ा। ईमान है हमारा, क्या ईमान है? यीशु मसीह दुनिया से पहले मौजूद था, दुनिया ही उसके वसीले से पैदा हुई है। दुनिया ने उसे, आप फिर पहचानते नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं पहचानते कि कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं। ओए वह बड़ा सही जे, चंगा जे, ज़रा इधर घट गल करना, ज़रा गुस्से का भैड़ा है। क्यों भैड़ा भाई? क्यों नहीं आपने इसको सिखाया? फिर नतीजा क्या निकलता है? गमगीनी, परेशानी। इंतखाब हम आपके शुक्रगुजार हैं, इन्होंने वो मैसेज यूट्यूब पे लगा दिया, सेंट जॉन्स टीवी, देखें ज़रा। नौजवानों से ख़ास दरख्वास्त की जाती है, ईमान में बिगाड़ पैदा ना करें, ईमान में बदनिजती बेतकादी ना लेके आएँ, वरना आप तखरीबकार हो जाएंगे। तखरीबकारी घर से शुरू कर देंगे आप। आगे है, लेकिन जितनों ने इसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो अपनों के घर आया, अपनों ने उसे, फिर दूजा ने तो कबूल करना होता है। जहाँ से उसको मौका मिलता है फिर वो कहते हैं आ जाइए, फिर उनको उल्टे काम पे लगा देते हैं।
بیٹیاں بھی ہوشیار رہیں، لڑکیوں کو بھی آج کل تقریب کاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام میرے لیے اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے سننا، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ افسس کی کلیسیا میں کیا تھا؟ میری اور آپ کی طرح کی کلیسیا تھی نا، وہ بھی کوئی آسمانوں سے نہیں اترے تھے۔ افسس کے لوگ ایسے ہی تھے، ان کے لیے خدا کا کلام آیا اور ان پہ کس طرح سے اثر کیا اس نے، اور کس کو استعمال کیا؟ ایسے شخص کو جو کلیسیا کے خلاف تھا، جو کلیسیوں میں بگاڑ پیدا کرتا تھا، جو خدا کے خادموں کو پکڑتا اور مارتا تھا، جو مسیح کا نام لیتا تھا اس کو مارتا تھا، اس کو ستاتا تھا۔ ایک دن پھر خدا نے اس کو پکڑ لیا، اور اب دیکھیں وہ لوگوں کو کیا کہتا ہے خداوند کے کلام میں۔ پہلی آیت، اسی سبب سے میں پولس تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا، بعد میں یسوع کا قیدی بن گیا، پہلے یسوع کا نام لینے والوں کو مارتا تھا۔ خدا نے پکڑا پھر اس کو کہ یہ جتنی سرگرمی سے الٹے کام کرتا ہے نا، اتنی سرگرمی سے اچھے کام بھی کرے گا۔ میں بچوں کے بارے میں پھر کہنا چاہتا ہوں، اگر بچے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بدتمیز ہے، نافرمان ہے، اس کو پیار کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو موقع دیں۔ پھر وہی بچے جو بڑی سرگرمی سے بدتمیزی کرتے ہوتے ہیں نا، پھر بڑی سرگرمی سے عزت بھی کریں گے۔ بچے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی نہیں۔ یہ دونوں بچے اب یہ انٹرفیتھ کے پروگراموں میں بھی چلے جاتے ہیں، اور اب پورا ویک میں ان کو یونٹی کی عبادتوں میں بھی دعوت دوں گا۔ جب کبھی یہ فارغ ہوں شام کو، ان کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں ان خادموں سے کہنا چاہتا ہوں نرم زبان رکھیں، بولیں بھی خدا کے ساتھ بھی تو آہستہ، روب کے ساتھ نہ بولے ابھی اور اسی وقت یہ کام کر۔ کیوں بھائی؟ وجہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کبھی کہ مجھے کہے نا اب پادری صاحب ہنے یہ کام کرنا ہے، نہیں کروں گا میں۔ پیار سے کہیں، ملائم لفظوں میں کہیں، میں آپ کے جوتے بھی پالش کر دوں گا۔ محبت سے کہیں، پیار سے کہیں۔ اگر کہیں ابھی اور اسی وقت، کیوں بھائی کیوں کروں؟ اور کام نہیں ہے مجھے؟ میرا اور آپ کا خدا پیار کرنے والا خدا ہے، مہربان ہے۔ جب میں اور آپ روب سے کہتے ہیں نا اس کو، پھر وہ مانتا نہیں، جتنی مرضی اونچی بول رہے ہیں۔ خداوند نرم زبان کو استعمال کرتا ہے، اور پولس رسول نے لوگوں سے کہا شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال ہی نہیں سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا۔ غیر قوم کا بندہ تھا، چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس طرح سمجھتا ہوں جو اور زبانوں میں بنی آدم کو اس طرح سے معلوم نہ ہوا تھا، جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے۔ ان پہ ظاہر ہوا ہے جو اس کو مانتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہے، یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں ظہور، عید ظہور اس کا نام ہے، غیر قومیں جن کو میں اور آپ کچھ نہ سمجھتے ہوں، خوشخبری کے وسیلے سے میراث میں شریک ہیں۔ یسوع مسیح کی میراث میں شریک ہیں، وہ وراثتی ہیں اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں۔ مرکزی آیت سن لیں اور پھر بند کروں گا۔ خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر، لفظ کیا ہے جی؟ قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا۔ یہ ہے فضل۔ کوائر کے لوگوں سے آپ سب پہ خدا کا فضل ہوا کہ آپ گیت گاتے ہیں، احسان تو نہیں کر کسی پہ، سیدھی بات کر رہا ہوں میں، تو کلام میں لکھا ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ مجھ پہ خدا نے ان خادموں پہ کیا کہ ہم یہ آلٹر کے اوپر بیٹھے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ نتھنگ۔ یہ اس کے فضل کے وسیلے سے ہے کہ ہم خوشخبری کے خادم بنے۔ خوشخبری صرف کلام سنا کے نہیں، جب گیت حمد و ثنا ہو رہی ہوتی ہے، سنڈے اسکول کی ٹیچرز بچوں کو سنا، یہ خوشخبری ہے۔ کیا ہی خوشنما
हैं वो कदम जो क्या लाते हैं? खुशखबरी। और जो खुशखबरी नहीं लाता, मैं उसको कहता हूँ मैंने सानू फोन ना करा कर, तो चंगी खबर नहीं सुनाता, अच्छी खबर सुनाया करें। इसलिए खुदा के कलाम का एक एक लफ्ज़ मेरे लिए और आपके लिए, मैं ख़त्म करने वाला हूँ, थक गया बड़ी जल्दी। आखिरी आयत, मुझ पर पौलुस रसूल कहता है मुझ पर सब मुकद्दसों में मैं जो सबसे ही छोटा हूँ, मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूँ, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेक़ियास दौलत की खुशखबरी सुनाऊं। गैर कौमों को आसान काम नहीं है, मुझसे पूछें, आसान काम नहीं है ये। 6 साल पेशियाँ भुगत रहा हूँ अदालत में, गैर कौमों में खुशखबरी सुनाने के सबब से। वारस रोड का खुदा ने दिया, जानदारी के साथ मेहनत के साथ करेंगे, खुदा आपको सरफराजी देगा। लाइफ स्टाइल का लफ्ज़ बड़ा सुना आपने ना, सुना है? आप भी बनाते हैं ना, है ना? लाइफ स्टाइल हम दूसरे से मुतासर होकर भी अपना उसी तरह का स्टाइल बनाते हैं। आखिरी बात करके ख़त्म करने लगा हूँ। अगर आपने लाइफ स्टाइल इस दुनिया में इस साल बनाना है, दुनिया का बेहतरीन लाइफ स्टाइल ये है कि अपनी आमदनी में गुजारा कर लें। दुनिया का बेहतरीन लाइफ स्टाइल यह है कि किसी से फ्रॉड मत करें। फ्रॉड सिर्फ पैसों का नहीं होता, वक्त का भी होता है। अच्छी चीज़ दिखा के बुला भी लें, देते कुछ नहीं है। लाइफ स्टाइल बनाना है बेहतरीन दुनिया का, किसी से फ्रॉड मत करें, सच बोलें, हलाल कमाएं, हलाल ही खाएं। उस तरह नहीं जिस तरह आजकल वो ऊपर लिखा होता है ये हलाल खाना है ना? ये नहीं, लफ्ज़ी नहीं, दिल से, अंदर से, सच्चाई से। दुनिया का बेहतरीन स्टाइल ये है कि आप इस दौर में रहते हुए दूसरों से प्यार करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनको धोखा ना दें। अगर धोखा देंगे आपके साथ भी होगा। मोहब्बत करें, आपको मोहब्बत मिलेगी। इज़्ज़त दें, आपको इज़्ज़त मिलेगी। आसानियाँ पैदा करें, आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। खुदा करे कि ये नया साल आप सबके लिए बहुत मुबारक साल हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदाम की हम दो तारीफ़ करते हैं, अपने हदिया नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदाम के ज़रूर गुजरानते हैं। दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बिछाया।
कर उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गौनागौर बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और इसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ की जाए और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दें। खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आप सबको इत्मीनान अता फरमाए। पीस ऑफ द लॉर्ड बी विद यू। यीशु मसीह का इत्मीनान हमेशा आपके साथ रहे। हम खुदा के खादिम होते हुए आपको दावत देते हैं कि आप आएँ। खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो ज़िंदगी की रोटी है और खुदावंद यीशु मसीह का खून जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, आएँ इसमें शामिल हों, रूहानी ताज़गी पाएँ। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से। गैलरी में जाएंगे, दो खादिम
लोग शायर बानी में शरीक होना चाहते हैं, अभी मौके आप आ सकते हैं। अगर आने में मुश्किल है हम आपके पास आ सकते हैं। अब जब कि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं तो आओ हम शुक्रगुजारी करें। कादर मुतलिक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तू जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यसु मसीह हमारे खुदावंद में बतौर अपने फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को और अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर गुजराते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फ़ज़ल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमा बरदारी करें और हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यसु मसीह के वसीला से जो तेरे और रूह कुद्दुस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल्ला जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल्बाद हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिल और ख्याल को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सब के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, सेंट जॉन चर्च की सारी कलीसिया के साथ, बेरोजगार लोगों के साथ, गमज़दा लोगों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमात बैठ जाए। बाकी खाली होते हुए आप सबकी खिदमत के लिए, आपके आने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर बच्ची फैमिली के लिए और पंजबी वापसी के लिए कनाडा गए, वापस आए, उन्होंने कैंडल्स हमारे लिए लाए वो वहाँ से। अगले संडे हम आपके सामने को रखेंगे। एक स्टैंड काफ़ी सालों से हमारे पास था जिसमें 5 कैंडल्स मोमबत्तियाँ लगती थी, वो मेरे बनाई थी न्यूजीलैंड से। आज मैंने उनको चेक किया और अगले साल हम लाएंगे। दरअसल वो 5 कैंडल्स वही हैं जो हमने एडवेंट के दिनों में इस्तेमाल की। पहली कैंडल, दूसरी अबू का इतवार, तीसरा चौथा अगर यीशु मसीह की नाम का। तो हम इन खानदानों के लिए खुदा को शुक्र अदा करते हैं जो अपने दिल में ये शौक रखे हैं कि जब वो जाएँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ खुदा उनके घर के लेके। ये सारी चीज़ें पीछे ये सब कर्टन ये वो आप लोगों का है, आपने बनाया। तो मैं अक्सर इन चीज़ों को जब याद करता हूँ, किताबों को देखता हूँ जिन फैमिलीज ने दिया, हम उनकी शुक्रगुजार होते हैं और दुआ करते हैं कि ये नया साल 2026 आप सबकी बहाली और खुशहाली के साथ